Ladies and gentlemen, welcome to Change of Pace Live. Today is an extra special episode for the gang. As you can see, I've got Ahmed and Ahmed, AZ Khwaja and Ahmed Hassan. But with me, I've got Bazid Khan, a professional commentator for Pakistan. He is quickly becoming one of the voices behind Pakistan cricket. He's covered a lot of ICC tournaments now. He's covered a bilateral series. And he's been his favorite thing to talk about, as we've noticed, is about how there's very few grass growing on Pakistani domestic pitches. He brings that up in a lot of his shows. And most recently, his very important contribution to me personally has been the breakfast menu at every single test match that Pakistan have played. It's been imperative reporting and impeccable cricket commentary. Bazid, first of all, thank you so much for making the time out for us today and coming onto the show. Thank you for having me. And if I'd known that this was such a hugely successful show, I would have come on much quicker. Well, there's a test series coming on. We're going to hold you to that now. But contractually obliged. But let's start with a journey into commentary. I mean, we told you about ourselves. We are three people in a drawing room with very affordable microphones that try to call the game play by play. Now, you obviously had an illustrious first-class career, over 7,000 runs to go with it. When did you make that shift to commentary? Why did you make it? And how do you feel about that now as a profession? Well, it's similar to you guys. I'd never really thought about going into commentary. I never really thought that I'll be professional, or if you call this professional, yes. But I was still playing. And there's a producer in PTV, Anju Mushtaq. He wanted me to commentate on a sort of a friendly game, Pakistan versus British Army or something, Rawalpindi mein. So I did that. And then after that, I got, fortunately, I got called up by Dr. Numan for an analysis for a test match, Pakistan-South Africa. I did that. And then the people I value their advice and value their judgment, they started telling me that maybe ye tumhe suit kar raha hai. Lekin I would say to them that it's not in my personality. I am not the kind of person who people would think would become a commentator or talk so much, because normally if you've seen my tweets or if you've seen my social media, there's nothing very social about it. It's just like you guys sitting in a room or cheering out. So anyway, people, mere chahne wale and people who were close to me said that this is the profession that might suit you or you should pursue, because we've never heard you talk so much. It's only when you're on camera or when the dollars are in front of your eyes that you start talking. Otherwise, you don't talk. So after that, again, unlike my cricket career, my commentary career is filled with luck. So there's now that 10 Sports is no longer there. 10 Sports now is owned by Sony, but in those days, 10 Sports, there was Zaid Noorani was the head of Pakistan cricket for 10 Sports. He contacted me, or I got to him, and he got me up for a Champions Trophy with Waqar Younis, because they were struggling to find a studio analyst who spoke English and all that, and it was just that I was in the right place or the right time, and I got my breakthrough. And from that onwards, fortunately, that I've been doing a lot of, consistently kar raha hu. I've been doing it a lot, so it's been brilliant that way. But there's a huge amount of luck in that. Kyunke, again, this is also one of my favorite topics. Like you said, the grass on the pitches, the infrastructure in Pakistan cricket. This is also one of my favorite topics. The infrastructure for commentary or for sports or for media, sports media in Pakistan is not great. And that I say
as a very it's an understatement. It's not great. Yeah, so we're experiencing that now at the moment. Actually, we're going through that to see where we fit in the spectrum of things, and it's often difficult because it feels like that glass in the ceiling is very thick to break through, which is, I guess, fine to a certain extent. But it's refreshing to see that you had the same problems. To be very honest. No, the problem in Pakistan, where people don't discuss the problem, is that we don't actually produce enough quality live sports. So there's no medium in Pakistan to actually produce even a test match or a one-day game. Whenever there's a test match, and now we're experiencing that, whenever there's a international game where you need a set standard of or quality of production, you have to hire companies from abroad, and you don't have the infrastructure here, which hasn't been developed, which is surprising. The number of news channels you have, which number of channels altogether you have, it's surprising that the sports channels hasn't picked up. There's a big issue with how Pakistan television gets first rights and how they have to be given all the rights at a nominal rate. So there's a problem. I think Star Sports broke through by legal means over Doordarshan, and then after that, you've seen this field just expand no end. But Pakistan it was an explosion. Hasn't broken through. So Pakistan hasn't broken through. So I'll tell you. I'll give you an example. So a good quality match being televised, you need at least a crew of minimum 35 and maximum goes up to 50, 60, or you can go even higher people. This is excluding, commentators. These are not the people, I'm excluding them. This is behind the scenes. This is behind the scenes. So all that media, the crew is there to produce one single game. And so, for instance, this is, मैं ये आपको बिल्कुल minimum बता रहा हूँ. This is, so if you have 20, 30 crews all around the world, I'm touching the bare minimum. So 20, 30 crews, if you calculate all the people involved, so you make 20, 30 crews that are specifically for cricket. And out of those crews, because Pakistan, and you've got people from Nigeria, from places who don't even play cricket, Germany, everybody comes because they're professional at what they do. So Pakistan से guess करें कितने बंदे होते total out of all, मतलब सारी दुनिया सब कुछ मिला के पाकिस्तान से total कितने बंदे involved in that? I'm hoping there's more than at least 50, 56, 50, 55 people. 6-7 लोग होंगे. I think मतलब might be one or two more, but I think there's only 4 total. Wow. So that's scary. That's why you have that glass ceiling. That's why you have the problem, because it hasn't been developed and nobody actually talks about it. Nobody talks about the production. Like nobody talks about first-class cricket. It's the same. Nobody talks about the actual producing of live sport and why Pakistan lags behind, whereas everywhere else, every cricketing nation, everywhere else, even Bangladesh now has its own started to have his own production team. So Pakistan still cannot get a crew together to produce an international game, which is really, I don't know how I can explain that. Yeah, we've seen that. We've seen Exactly. we've seen that PSL was run by Sunset and Vine. I was quite happy about that because it was such a high-end production, but then all the people, very few of them were Pakistani. But that actually brings us into like our next area, is because the backroom staff is kind of what dictates what you guys end up saying on television to a certain extent. Not completely, but I've seen sometimes the Sky Sports broadcast, it gets disconnected and I can hear the producer yelling weird things. And on the basis of that, I understand that a lot of statistics and even color commentary is fed to the commentators. Now, you're a Pakistani commentator in a field that is not in abundance of Pakistanis. There's very few of us out there. मतलब ये आपने खुद ही कहा है कि 4-5 ज़्यादा 6 होंगे. तो do you feel like this notion, because हमें भी ये notion होती थी जब हमने शुरू भी किया, do you feel this notion to like quote unquote represent Pakistan on the international stage as a commentator, कि थोड़ा हमारा narrative भी present हो, क्योंकि obviously जब आप production में नहीं होते तो वो narrative इतनी आसानी से बाहर नहीं आता.
Yes, to some extent वो producer की आपको आवाज आ रही होती है. That is part of the show, but that is not. They don't really, मतलब they won't dictate कि आपने ये कहना है या you have to say this. They'll only tell you कि अब हमारा ये पैकेज चलने लगा है या मतलब अब ये दिखाएंगे, so relate to that. So the question आप जो पूछ रहे हो कि पाकिस्तान का narrative, I think it's imperative. अब ये बात बड़ी गलत हो जाएगी, लेकिन आपका फोरम आप कह रहे हो खोल कि के बोले, ठीक है, खोल के बोले. तो खोल के बोले. imperative ये है कि not only cricket, मतलब सारी फील्ड में ऐसा है कि पाकिस्तानी हमारे शायद हम भी हैं, हमारी शायद ये नेचर में है कि we don't actually research and most of the times where, मतलब आपने तो पता नहीं कौन सी रिसर्च की मेरे बारे में, this is quite unique, but most of the times जब हम किसी भी जगह जाते हैं तो थोड़ा सा हम ill prepared होते हैं, because this हमने देखा नहीं, we don't have that work ethic. So जब आप पाकिस्तान या any, मतलब आपने अगर discuss करना है anything, so you need to have the background, you need to have a research on what you're going to talk about, और किस तरह वो explain करना है और कैसे है, वो सारा कुछ आपको पता होना पड़ता है. तो अगर वो सिचुएशन आपके पास ना हो तो फिर you cannot dictate anything, मतलब आप कुछ भी नहीं बोल सकते. आप मतलब they allow you to talk with the producers and say, look, for instance, मतलब specific stuff कि एक बैट्समैन ऐसे खेल रहा है, I want to talk about this, can you give me stuff about that and all that. But अगर पाकिस्तान का narrative आपको explain करना है, then you have to be एक तो in touch with what's happening around in Pakistan cricket. Also, you need to be very clued into it. And problem वो आता है कि obviously very very big Pakistan के जो commentators हैं, those are very very big names. So they're whatever they say, मतलब उस पे इतनी criticism या scrutiny नहीं होगी, क्योंकि because they're a big name, they don't, मतलब उनके बात अगर गलत भी है तो कोई बात नहीं, it's the person who's saying it. But for instance, अगर मैं हूँ या अगर आप हैं या कोई छोटा बंदा की बड़े फोरम पे बात कर रहा है, तो उसकी बात बहुत स्क्रूटनाइज होगी कि ये कैसे कह सकता है कि ऐसे है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है. So you need to have all that background with you. ये मैंने देखा है कि in my short career, whatever it's been, the best commentators that you hear, वो जो prep करते हैं, that is unbelievable. मतलब मैं तो, मुझे शर्म आती है जितनी ज्यादा वो prep करते हैं. मतलब इयन बिशप, एलन विल्किंस वगैरह, उनके पास, आपके पास स्टैट्समैन भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन अपनी prep जो वो रिसर्च करते हैं हर प्लेयर पे, हर सिचुएशन पे, तो ये जो बैकग्राउंड चीजें ये कभी सामने नहीं आती ना, ये पता नहीं चलता है. तो लेकिन वो जितनी प्रेप करते हैं उससे ही, because they have so much information, there's never a dull moment. They know कि चलो अगर कुछ हो भी नहीं भी रहा, मुझे पता है कि ये information है, ये है, सारा कुछ वो preparation में ही, मतलब before the game started they have 200 pages more than you have. Especially आपने इयन बिशप की बात की है, तो वो हैदर अली जो हमारा न्यू अंडर 19 का बैट्समैन है, उसके बारे में इतनी तफसील से बात कर रहा था, उसकी तारीफें कर रहा था ड्यूरिंग द अंडर 19 वर्ल्ड कप, इवन ऑन हिज सोशल मीडिया, ऑन ट्विटर. तो वो मतलब ही इज दैट मच क्लूड इन इनटू द लोकल पाकिस्तानी गेम. और एक हमारा एक वाकया हुआ था पीएसएल ड्राफ्ट में कि एक सर्टेन कमेंटेटर जाहिद अली को बांग्लादेशी प्लेयर समझ रहे थे. तो ऐसे भी होता है, तो फिर बंदा, आपका एग्जांपल और ज्यादा क्लियरली इलस्ट्रेट हो जाता है विद दैट. सवाल ये है कि sorry, मतलब what do you do for your preparation then? मतलब how do you go about this, given कि आपको पता है कि एक अगर repute बन गई है या एक ये stigma है कि पाकिस्तानी commentators वगैरह इतनी preparation नहीं करते. How do you counter that? What is your game day prep, for example? देखिए, ये स्टिग्मा अब सिर्फ पाकिस्तानी पे नहीं है, ये सब कॉन्टिनेंट पे स्टिग्मा है जो इंडिया ने अब ब्रेक कर लिया. इंडिया ने ब्रेक कर लिया है, क्योंकि इंडिया ने अब वैल्यू करना लगे हैं. एक तो टेक्निकल वो सारा कुछ वैल्यू कर रहे हैं, ऊपर से दे वैल्यू इंफॉर्मेशन एंड दे वैल्यू स्टैट्स, और सारा कुछ वो उस तरफ चल पड़े हैं, क्योंकि उनकी जो स्टार इज अ वेरी बिग प्रोडक्शन कंपनी. तो
जो वो क्रिकेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे नीड टू इवॉल्व. अब ये सारा मतलब दिस यू कैनॉट आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है. मतलब ये इसको आइसोलेट नहीं कर सकते. आपको ये पूरा बैकग्राउंड देखना पड़ता है इसमें भी. बांग्लादेश का प्रॉब्लम है अभी भी. बांग्लादेश अभी इवॉल्व कर रहा है. देखते हैं कि आगे कितना इवॉल्व करता है, कितनी उनकी प्रोडक्शन इवॉल्व करती है, कितना उनका मीडिया इवॉल्व करता है, सो दैट दे कैन डेवलप. श्रीलंका में थोड़ा सा कमेंटेटर्स उनके अब आने शुरू हो गए हैं बेहतर. अगेन उनकी भी प्रोडक्शन इतनी अच्छी नहीं है जितनी पाकिस्तान की है. उनके अपने पास एज इन लोकल एक मीडिया प्रोडक्शन हाउस ऑफ स्पोर्ट इतना अच्छा नहीं है. सो ये स्टिग्मा इंडिया ने हटा लिया है. पाकिस्तान मतलब कोई खुल के नहीं कहता, लेकिन आपको फील हो जाता है उनकी बातों से कि इवन जैसे अब ये अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले मैंने किया था एक जो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टूर्नामेंट्स आई हैव एवर डन, वो था क्वालिफायर्स. अब क्वालिफायर्स में ओमान की टीम है, नाइजीरिया की टीम है और अब सिंगापुर की है. इस किस्म की टीमें हैं जो कि फिर उसमें से आगे जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप खेलना था. तो उसमें जब मुझे कॉल आई तो सबसे पहला सवाल यही हुआ था कि मतलब सवाल क्या, उसने मुझे बताया था कि ये इतना आसान टूर्नामेंट नहीं है, यू विल नीड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च. सो दे स्पेसिफिकली मतलब आपको, बिकॉज आई एम फ्रॉम मतलब इधर से हूँ, तो he specifically said के come prepared. But I think that's a good point क्योंकि जिस तरह जब commentary शुरू करने जब हम भी जा रहे थे तो it felt like the most rewarding and the easiest job in the world. What could be better than calling the most fun game? और फिर जब हम बैठे थे तो it was very difficult. और मतलब and cricket is kind of a game that there's a lot of empty space that you need to fill even in a T20 match. तो आपको चाहिए होता है. और under 19 World Cup तो ऐसा टूर्नामेंट है कि I think without the likes of yourself and Ian Bishop, because we're walking into the game, पाकिस्तान की under 19 के टीम के अलावा जो थोड़ी हो सकता है इंडिया का स्क्वाड के अलावा हमें इतनी नॉलेज नहीं होती. The kind of information that we get from that ICC broadcast is unparalleled. But I want to also, there are good parts of the job as well. I'm sure it's not all prep and all homework and all studying. I want to ask you, I mean, you've been doing this for 3-4 years now at the international level now. Do you have a favorite commentary moment? A favorite breakthrough? This is when you're sitting back and you're thinking of Bazid Khan, the commentary, you go like, wow, this was when I really peaked. This was my moment. नहीं, मुझे तो लोग बताते हैं. I think when you're actually commentating, you don't feel कि this was the moment. बाद में लोग बताते हैं. तो एक मेरे ख्याल PSL 1 था या I think it was PSL 1. तो एक क्रिक इन्फो का वो लिखता है उस्मान समीउद्दीन, उसने मुझे वो अभी हुआ ही था और मैं वो दुबई के कमेंट्री बॉक्स से आप निकलो, इस तरह थोड़ा सा हॉल है, उसके आगे फिर प्रेस वाले सारे बैठे होते हैं. तो मैं भी स्टिंट करके मैं अक्सर वहाँ प्रेस बॉक्स में ही, अगर मैं कमेंट्री कर रहा हूँ तो आपको प्रेस बॉक्स में ही मिलूंगा, क्योंकि पाकिस्तानी प्रेस बॉक्स, if you've not experienced it, is the most entertaining place ever. क्योंकि क्रिकेट की तो बात हो नहीं रही होती है उधर, तो ऐसी बातें हो रही हैं कि YouTube वीडियो चल रही होती है, कोई कुछ कर रहा होता है. वो मेरे ख्याल अगर वहाँ पे YouTube चले तो काफी देर से बैन हो चुका होता पहले. बट मेरे ख्याल नवाज ने ब्रैड हॉग को बोल्ड किया था. Oh, what a delivery that was! An absolute java. Brad Hodge comes and goes, and Nawaz pitches legs, hits off. What a start from Nawaz. Match turned on the head. Zalmi lose their third. Brad Hodge without scoring. Unbelievable. मैंने कोई कमेंट किया था तो वो उसने मुझे कमेंट बार कोई 8-9 दफा उसने पता नहीं रिकॉर्ड कर लिया था क्या, वो मुझे रिपीट पे ही सुनाता गया. हम भी ढूंढेंगे कुछ. तो उसने फिर मुझे बोला कि बस अब तुम पीक कर गए, अब छोड़ दो, रिटायर हो जाओ कमेंट्री से. मैंने कहा बात तो ठीक है, पीक पे रिटायर करना चाहिए. वैसे बाजिद भाई, आपने रिटायरमेंट की बात ली तो आपने फर्स्ट क्लास भी 150 फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए हैं. आपने यू प्लेड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, लाहौर, इस्लामाबाद, मुख्तलिफ टीमों में खेले हैं. आपके और आपने फादर ने आई बिलीव एक
मैनिफेस्टो भी दिया था पीसीबी को कभी फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए. व्हाट इज योर थॉट्स ऑन द रीसेंट फर्स्ट क्लास जो फिर एक रीशफल हुआ है, और आपके वक्त कैसा था फर्स्ट क्लास क्रिकेट, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? बेसिकली आई वांट यू टू गिव टू से योर हार्ट आउट कि भाई फर्स्ट क्लास में प्रॉब्लम क्या है और कैसे हम ठीक कर सकते हैं, और कभी ठीक हो भी सकता है या नहीं. बहुत देर लग जाएगी, को आधा घंटा और लगे रहे टाइम ही टाइम है. लेकिन हमारे वक्त में मतलब फर्स्ट क्लास प्रॉब्लम तब पिचेस का था और बॉल्स का था, जो कि अब थोड़ा सा बेहतर इन्होंने किया है कि पिचेस बेहतर कर ली हैं. बॉल भी अब इन्होंने जो इंटरनेशनल मैच में लगता है वो ही फर्स्ट क्लास में लगना चाहिए, जो कि भाई ये कुकाबूरा जो ये खेलते हैं डोमेस्टिक में, हाँ, हमारे पिचेस के लिए ठीक है, या वो ग्रेज वगैरह या ड्यूक्स वगैरह हमें ज्यादा सूट करते हैं? क्या रहा है आप? इशू वो नहीं है. इशू ये है कि सारी दुनिया में ऐसे है, हम अनोखे हैं. ये हम पिछले मतलब अब लगा कुकाबूरा, लेकिन हम अनोखे हैं कि जो आपकी होम सीरीज में बॉल लगता है एज एन वही बॉल फर्स्ट क्लास में यूज होता है. इंग्लैंड में अगर ड्यूक लगता है तो वही टेस्ट मैच में लगता है. ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में कुकाबूरा लगता है तो वही टेस्ट मैच में लगता है. पाकिस्तान में ग्रेज लगता था और टेस्ट मैच में कुकाबूरा लगता था, तो सडनली वो बॉल से ही गेम चेंज हो जाती है, फॉरेन गेम चेंज हो जाती है. ग्रेज और कुकाबूरा का बॉल ही टोटली डिफरेंट है. एक 400 रुपए का बॉल है, मतलब 1000 रुपए का बॉल है, एक 4000 का बॉल है. तो वो बहुत बिल्कुल, अब तो खैर और भी महंगा हो गया, अपने जमाने की बात कर रहा हूँ. तो आप ग्रेज इस्तेमाल कर लें, आप ड्यूक इस्तेमाल कर लें, बट फिर आप जो टेस्ट मैच है उसमें भी वही लगाएं. उसमें फिर क्यों चेंज करते हैं? सारा इश्यू तो वहां पे मैं इनसे यही डिस्कस करता था कि ग्रेज का बॉल अगर इतना अच्छा है तो फिर आप टेस्ट मैच में क्यों नहीं लगाते? उनकी डील हुई है ना कुकाबूरा वाला, तो उसका जवाब नहीं होता था उनसे कि एक तो डील शायद हुई हुई है, पर जो ग्रेज का बॉल है वो आपके प्लेयर्स या इवन ओवरसीज प्लेयर्स जो हैं वो आईसीसी मेरा नहीं ख्याल कि उसको अप्रूव करेंगे. तो दैट वाज एन इशू. वो खैर इन्होंने कुछ कर दिया है, बट हमारा जो मैनिफेस्टो जो था वो ऐसे था कि अभी सबको ये पता है, दिस इज एन ओपन सीक्रेट, कि ये लेके गए पीएम साहब के पास. पीएम साहब ने कहा कि नहीं जी मुझे 6 टीमें चाहिए. अब पीएम साहब ने जो आपने भी सुना होगा, एवरीबॉडी मस्ट हैव हर्ड दिस, कि ही वांटेड अ स्ट्रक्चर व्हिच रिप्रेजेंट्स शेफील्ड शील्ड वाला, बट इट रिप्रेजेंट्स इलाके रिप्रेजेंट्स करता है, मतलब रिप्रेजेंट्स जगहों को रिप्रेजेंट करता है. ऐसा नहीं चाहिए था कि डिपार्टमेंट जीपीआई या जो भी जिस तरह भी. यू वांट प्लेसेस व्हिच एक्चुअली प्ले क्रिकेट हैव देयर टीम्स. लेकिन जब वो 6 टीमों का कहा, तो जो अब टीमें बनी है दीज आर आर्टिफिशियल टीम्स. ये अगर आप पाकिस्तान के मैप में देखेंगे तो नॉर्दर्न कोई जगह नहीं है, साउथ पंजाब कोई जगह नहीं है, सेंट्रल पंजाब कोई जगह नहीं है. सो हाउ कैन एनीबडी, अब स्पॉन्सरशिप का इसमें 100% प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि नोबडी विल कम एंड स्पॉन्सर नॉर्दर्न, क्योंकि अफिलिएशन नहीं है. पीएसएल में आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है बिकॉज ऑफ द नेम्स ऑफ द सिटीज. इफ अगर वो सिटीज का नाम हटा दें पीएसएल में, ये लगा दें नॉर्दर्न और सेंट्रल और ये, वो स्पॉन्सरशिप विल गो डाउन स्ट्रेट अवे. मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान टीम का नाम अगर आप पीसीबी 11 रख दें तो लोग फॉलो करना छोड़ देंगे. सही बात है. 100%. एग्जैक्टली. सो हमने जो मैनिफेस्टो दिया था, एवरी बिग लीग आप देख लें, क्रिकेट को छोड़ दें, एवरी बिग लीग आप देख लें, प्रीमियरशिप देख लें, ला लीगा देख लें, जो बड़ी बड़ी लीगें हैं दे आर मतलब इलाकों पे बेस्ड है. अब चेल्सी कितना बड़ा इलाका है लंदन में, 4-5 गलियां हैं. ये तो है भी दोनों चेल्सी के जियाले जो आपके लेफ्ट पे दोनों बैठे हुए हैं. परफेक्ट टॉपिक टू डिस्कस. हाँ, तो चेल्सी अगर आपने देखा है लंदन में, तो वो तो बिल्कुल ऐसे मतलब एक एग्जैक्टली 5-6-7 गलियां हैं, बट बिकॉज एफिलिएशन टू द प्लेस, टू द इलाका. तो दैट इज हाउ यू एक्सपैंड क्रिकेट, एक्सपैंड एनी स्पोर्ट. और स्पॉन्सरशिप भी तब ही आता है. मुझे ये याद है कि मैं जब खेलता था लीग क्रिकेट इंग्लैंड में, किसी विलेज से की टीम होती थी इलाके पे बेस्ड, तो बॉल स्पॉन्सर हुआ होता था. बॉल स्पॉन्सर किसी लोकल बंदे ने किया होता था. लोकल बंदे ने क्यों किया हुआ है? क्योंकि भाई मेरे इलाके की टीम. और अगेन दिस, मैं थोड़ा सा साइड पे जा रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान में हमें उल्टा सिखाया जाता है, हमेशा से उल्टा सिखाया जाता है. हमें कहते हैं पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी हैं. दैट इज रॉन्ग. आपकी सबसे पहले एफिलिएशन होती है जहां आप पैदा होते हो, जहां आपका घर होता है, जहां आपका मोहल्ला होता है. पहली एफिलिएशन वो होती है. उसके बाद फिर आप जाते हो, चलो जी मेरी इस्लामाबाद या लाहौर या जहां भी, फिर मेरी इससे एफिलिएशन है, एंड देन यू वर्क इट अप टू योर कंट्री.
बिकॉज जाहिर है सबसे पहले तो आपको अपने घर से एफिलिएशन है ना, आप तो ये तो नहीं कह सकते so the development of cricket sport is in the same way. अगर आपने उसमें sponsorship लानी है, उसमें betterment लानी है, तो then you have to have at least 10-11 teams in Pakistan. और वो 10-11 teams आपके पास पहले से थी I think it was 2001 or 2 जब इन्होंने region उन्होंने बनाया. Region is again पाकिस्तान का मैप खोलें तो there is no such thing as region. अब region में ये किया कि जो अच्छे, जहाँ से for instance मैं आपको example दूं, तब की बात है, सरगोदा की टीम अच्छी होने लग गई थी. एज इन सरगोदा से प्लेयर आने लग गए, मिसबाउल हक आ गया, अपना मोहम्मद हफीज आ गया, एक नवीद लतीफ था जो पाकिस्तान से खेला, वो आया. फिर एक फैसल खान अफरीदी था जो नहीं खेला पाकिस्तान से लेकिन बहुत तेज बॉलर था, अब वो अंपायरिंग करता है. तो वो उनकी सरगोदा की टीम डेवलप होने लग गई. इन्होंने रीजन बनाया और सरगोदा को फैसलाबाद से जोड़ दिया, तो वो रीजन बंद हो गया. मतलब सरगोदा की टीम बंद होगी, वहां से अब प्लेयर आप अब निकालने सरगोदा से प्लेयर ही नहीं निकलता. सो जब आप इस तरह अब उसका आपने मेगा लेवल पे ऐसे कर दिया है कि कराची लाहौर से सारे 1940 से जब से पाकिस्तान में क्रिकेट शुरू हुई है, सबसे ज्यादा प्लेयर्स कराची लाहौर से आए. एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर कि कराची लाहौर की फर्स्ट क्लास टीम नहीं है. लाहौर के साथ 3-4 जगह लगाई हुई है और कराची के साथ, उनके साथ भी 3-4 और डाले हुए हैं. तो इंस्टेड के आप डिसेंट्रलाइज करो और गिव इट टू डिविजन्स. जो पाकिस्तान इज डिवाइडेड इन डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स एंड सिटीज, सो डिवीजन और सिटीज को दो. एंड विद मतलब अगर इस्लामाबाद इज सॉवरन, they can bring their own sponsor, they can then develop cricket and फिर स्ट्रक्चर बनता है. ऐसे नहीं बनता कि सेंट्रलाइज्ड है. अभी आपको पता है कि सारे, फॉर इंस्टेंस मैं अगर चले मैं नॉर्दर्न या साउथ पंजाब या जिधर का भी मैं कोच हूँ, भी और मैं एक और एग्जांपल आपको, जिधर का भी मेरी कोई इख्तिलाफ हो जाता है, मैं कहता हूँ ऐसे नहीं ऐसे करना है, वो लोग कहते हैं कि नहीं, वो जो भी मैनेजमेंट है वो कहता है कि नहीं. मैं अगर उधर मैं रिजाइन करता हूँ तो देन मतलब वो, क्योंकि everybody is contracted to the PCB, everything is centralized, तो once I resign, that is a resignation to the PCB, तो मैं कहीं भी नहीं लग सकता. हाँ, किधर जाओगे आप? Right. कह रहे हैं. So you're आप कह रहे हैं कि थोड़ी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, थोड़ी सॉवरेनिटी होनी चाहिए. थोड़ी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे बाकी दुनिया के सारे क्रिकेट बोर्ड्स हैं, अगेन हम अनोखे हैं. ECB काउंटी को नहीं डिक्टेट करता कि तुमने क्या, काउंटी अलहदा है ECB से. ECB इज अ रेगुलेटरी बॉडी, ओके. ACB डज नॉट डिक्टेट टू विक्टोरिया कि ऐसे करो, दैट इज अ रेगुलेटरी बॉडी. इवन इंडिया में BCCI से ज्यादा तकड़ी है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन. बिल्कुल. जब तक आप वो नहीं डिवॉल्व करोगे, जो मर्जी आप इसको तो आर्टिफिशियली जिस तरह मर्जी इसको पंप अप करो, यू विल नॉट बी एबल टू. अगर मेरे घर के साथ अगेन एग्जांपल है कि मेरे घर के साथ क्रिकेट ग्राउंड है, तो देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ मी प्लेइंग क्रिकेट. अगर मेरे घर के साथ क्रिकेट ग्राउंड है और उधर अच्छे लेवल की क्रिकेट, मतलब फर्स्ट क्लास लेवल या इवन इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, तो फिर मेरे चांसेस ऑफ प्लेइंग क्रिकेट बढ़ जाते हैं. अगर मेरे घर से 200 मील पे ग्राउंड है, तो मेरा क्रिकेट खेलना एकदम चांसेस, मतलब खेल शायद मैं फिर भी खेलूं, लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं. यही चीज हमने. भाई, व्हाट अबाउट डिपार्टमेंट क्रिकेट? वो आप डू यू एग्री कि उसको स्क्रैप कर देना चाहिए, मर्ज करना चाहिए? क्योंकि अब प्लेयर के मुआवजों का भी इशू आ रहा है जी. PCB पैसे ही 2-2.5 लाख दे रहा है, उसमें क्या बनेगा किसी का? देखिए, गलत इन्होंने जो स्ट्रक्चर लगाया वो गलत लगा दिया ना, कि फर्स्ट सबसे पहले तो आपने देखना है अर्निंग्स और मतलब लोगों के चूल्हे बड़ी तो कोई चीज ही नहीं है, बड़ी तो कोई चीज नहीं है. सो सडनली ये मतलब आप सबकी रोटियां बंद करके ये स्ट्रक्चर लगा देते हो, तो वो तो जितना अच्छा भी स्ट्रक्चर आप लगाओगे, जैसा भी लगाओगे, अगर आप उनको मैच नहीं करोगे या उनको ज्यादा पैसे नहीं दोगे, तो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू फेल. डिपार्टमेंट्स का अगेन प्रॉब्लम डिपार्टमेंट्स का यही है कि नोबडी एक्चुअली मतलब अफिलिएट्स देमसेल्फ विद द डिपार्टमेंट. सो अगर PI और नेशनल बैंक का मैच हो रहा है, चाहे उधर से वसीम अकरम वकार इन्हें सब खेल रहे हैं, nobody will actually go to the game or nobody will follow it that way. चलो देख लिया, but there is no affiliation. तो the growth नहीं हो सकती. PIA की टीम या नेशनल बैंक की टीम ठीक है, उन्होंने प्लेयर्स के लिए किया, लेकिन क्रिकेट की ग्रोथ उस तरह नहीं चल सकती. अगेन जो इंडिया में स्ट्रक्चर है, उनका 2 डिफरेंट, रणजी ट्रॉफी इज डिफरेंट.
जहाँ से उनकी ग्रोथ होती है, जहाँ से सारे उनके प्लेयर आते हैं, और फिर प्लस दीज कॉर्पोरेट पीपल. बट द मेन फोकस इज रणजी ट्रॉफी बिकॉज मतलब उसमें ठीक ठाक, अगर आप सिर्फ रणजी ट्रॉफी खेलें तो आपके मतलब अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं. अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं. बट और हमने देखा था ये वसीम खान और एहसान मानी कभी पीआईए के दफ्तर जा रहे हैं, कभी यूबीएल के दफ्तर इधर उधर जा रहे हैं, एंड में फिर इन्होंने घुटने टेक दिए और कहने जी हम डिपार्टमेंट्स को सेपरेट टूर्नामेंट दे रहे हैं. तो यानी वी आर बैक टू स्क्वायर वन आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस. बैक टू स्क्वायर वन. और मतलब पाकिस्तान है, आपको पता है, वक्त बदलते देर नहीं रखती. मतलब अब पीसीबी अगर बोर्ड जब भी जाए 3-4 साल बाद जाए, तो अगला जो आएगा वो अगेन इसको चेंज ही करेगा, क्योंकि द प्रेशर ऑफ प्लेयर्स बेसिकली तो प्लेयर्स से ही है ना क्रिकेट बोर्ड या सारा कुछ. एंड इफ यू डोंट लुक आफ्टर द एवरेज प्लेयर, इट्स नॉट अबाउट द टॉप क्लास प्लेयर. टॉप क्लास प्लेयर तो खुद ही सारा कुछ अपना कर लेगा. If you don't look after the average player or raise the level of the average player, cricket wise, monetary wise, सारा professionally, तब आपकी क्रिकेट ग्रो करती है. अगर टॉप क्लास प्लेयर तो इक्का दोका आपका निकल आता है, बट अगर एवरेज प्लेयर का लेवल, आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का लेवल तभी इंक्रीज होता है जब एवरेज प्लेयर का लेवल इंक्रीज होता है. तो एवरेज प्लेयर का लेवल इंक्रीज ऐसे तो नहीं होगा कि आप कहें जी के जो 35 एंड ओवर है इनको ना खिलाओ, वो इतने तो सारी दुनिया में खेलते हैं. इफ यू आर गुड इनफ तो खेलते हैं. मतलब काउंटी क्रिकेट में 40-40 साल का बंदा खेल रहा है. ना आता है 35 एंड वाला रूल खत्म कर. Marcus Trescothick is still playing. Yeah. बिल्कुल नहीं. और ये वाली बात बाजिद भाई आपकी जो है कि टॉप लेवल जो प्लेयर होता है वो अपनी जगह खुद बना लेता है, क्योंकि अब दुनिया में इतनी लीग्स निकल आई हैं, T20 लीग्स निकल आई हैं, तो इनके पास तो वैसी अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, इनको वैसी लोग स्काउट कर लेते हैं, इनको वैसी ले जाते हैं. तो जो एवरेज प्लेयर है उसकी जब तक आप इनकम नहीं बढ़ाएंगे, उनके लिए इंसेंटिव नहीं बढ़ाएंगे, तो वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर डेफिनेटली वहीं का वहीं रहेगा. एंड देन मतलब डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इस वक्त तो आपके पास, प्लस द फैक्ट कि अगर आपके पास 10-11, मैं अपनी बात करता हूँ, या मतलब आप अगर एस्पायरिंग कोच हो या अगर पुराने क्रिकेटर हो तो उसकी बात करता हूँ. अगर आपके पास 10-11 सिटीज रीजन्स जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, तो फॉर इंस्टेंस मैं रावलपिंडी जाता हूँ, मुझे कोच रख लो, कहते हैं नहीं, तो मैं फिर लाहौर जा सकता हूँ, मैं कराची जा सकता हूँ, मैं फैसलाबाद जा सकता हूँ. ठीक है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आ जाए टू ग्रो. प्लस अगर फॉर इंस्टेंस मैं समझता हूँ, मैं कहीं काम भी कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार यहाँ पे मेरा काम सही नहीं हो रहा, तो देन अगेन आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो समवेयर एल्स. राइट नाउ अपॉर्चुनिटी जीरो है, क्योंकि पीसीबी से ही आप कॉन्ट्रैक्टेड हो, पीसीबी से ही आपने वैल्यूएशन आपकी पीसीबी से ही होनी. उन्होंने क्लियर कर दिया तो कर दिया, मेरी टीम जीते हारे डजंट मैटर. एक और टॉपिक मजे की बात है कि जो इन्होंने चलो 6 टीम का स्ट्रक्चर किया, लेकिन टॉप रन गेटर वही है, टॉप विकेट टेकर वही है, टॉप फील्डर वही है, टॉप के विकेट कामरान अकमल उधर का ही टॉप है, इमरान फरत उधर ही है, ताबिश खान उधर ही विकेट है. तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी एक रेवोल्यूशन आएगी, कोई नए नए लड़के आएंगे, उभरते सितारे आएंगे, ऐसे कोई सिचुएशन नहीं है. वो जो रेगुलर टॉपर थे वो टॉपर ही रह गए. इस सिचुएशन में तो जो नया प्लेयर है, आपको तो पता है, सबको पता है, लेकिन ये लोग अब खुली बात हो रही है तो लोग कतराते हैं इस बात से करने को कि इन पाकिस्तान द क्रिकेटर इज ऑफ अ वेरी लो इनकम बैकग्राउंड. आपके पास वो क्रिकेटर नहीं आता जो मतलब टॉप, मतलब एलीट क्लास या हायर मिडिल क्लास वाला. बहुत इक्का दुक्का प्लेयर आ जाएगा, बट नॉर्मली 99% जो है या 90% आपका प्लेयर जो है वो छोटे उससे आता है, बैकग्राउंड से. अब आपको मैं आपको अच्छी कहानी सुना रहा हूँ, गुड कहानी सुना रहा हूँ. मोहम्मद अब्बास की आपको कहानी सुनाता हूँ. मोहम्मद अब्बास सियालकोट के बॉर्डर पे रहता था. अब इन्होंने जब रीजन बनाए तो सियालकोट के साथ एलडीसीए लगा दिया, गुजरांवाला लगा दिया, तो सियालकोट की टीम जो थी उसमें ब्रेक इन करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया. बिकॉज अगेन एलडीसीए की टीम शेखुपुरा स्टेडियम में खेलती थी. अब शेखुपुरा से कोई प्लेयर नहीं आता. शेखुपुरा के अब मैं आपको प्लेयर गिनाऊं, राना नवीद, आकिब जावेद, ये वहां से आ रहे थे. फिर फास्ट बॉलर से एक जाफर नजीर जो ऑलमोस्ट प्लेड, बहुत जबरदस्त बॉलर था. इमरान नजीर एलडीसी से खेला. तो वहां आप शेखुपुरा में क्रिकेट, क्योंकि वहां की टीम नहीं है, अब शेखुपुरा में क्रिकेट खत्म हो गई है बिकॉज देयर इज नो फर्स्ट क्लास टीम. ये तो मतलब जब रीजन बने 2000 के शुरू में. सो एनीवे, वो सियालकोट के बॉर्डर में रहता था, वो सियालकोट से खेल नहीं सकता था बिकॉज ही कुडंट ब्रेक इनटू द टीम. तो बेचारा कभी वेल्डिंग कर रहा है, कभी खेल रहा है, कोशिश कर रहा है, बट ही कांट ब्रेक इनटू द टीम.
उसकी किस्मत के किसी लड़के ने उसको देख लिया जो कि KRL में खेलता था, उसने उसके KRL में ट्रायल कराया, वो वहां से उठ के KRL गया, 2 सीजन खेला और तीसरा चौथे सीजन के बाद वो आपका पाकिस्तान का नंबर 1 बॉलर बन गया. बट दिस इज अ गुड स्टोरी, दिस इज वन ऑफ, ये तो हमें पता है कौन सी स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी. एंड दिस इज उस जमाने में जब रीजन्स आपने बना दिया और 26 टीमें हो गई पाकिस्तान की, बट बिकॉज वो आपने इलाकों को बंद किया हुआ था, वो ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा था. अब तो आपने उसके ऊपर, उन रीजन्स के ऊपर और सिस्टम बंद कर दिया है, क्योंकि आपने प्रोविंशियल बेस्ड गए हो और 6 टीमें कर दी हैं. तो जो फॉर इंस्टेंस अगर रावलपिंडी के बाहर कोई लड़का रहता है, वो उसको घर से इजाजत मिलती है, 1 साल की मिलती है मैक्सिमम, क्योंकि उनको चूल्हा जलाना है घर पे, चाहे यार बेटा तू खेल ले क्रिकेट, वो 1 साल के लिए जाएगा. वो जब तक उसको नजर नहीं आएगा कि रावलपिंडी की फर्स्ट क्लास टीम भी है, 1 साल के बाद वो फिर छोड़ के आ जाएगा, क्योंकि रावलपिंडी की टीम ही नहीं है. वो किधर देखेगा नॉर्दर्न अब मैं आजाद कश्मीर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में किधर, मतलब वेयर शुड आई गो? क्रिकेट दूर कर दिए प्लेयरों से. That's a good point. I think this is we always go back on the show to what happens in the States, in the US. I always feel like that's a very vigorous system of sports. और वहाँ स्टेट लेवल पे भी नहीं, मतलब सिटी लेवल पे भी, नेबरहुड लेवल पे, हाई स्कूल लेवल पे फुटबॉल, बास्केटबॉल, आइस हॉकी शुरू हो जाती है. एंड इट्स लाइक ऑलमोस्ट अ कल्ट फॉलोइंग ऑफ दीज स्मॉल यंग टीम्स जो बढ़ती जाती है. एंड दैट्स व्हाई यू हैव इंस्टीट्यूशंस लाइक द NBA एंड द NFL एंड एक्सेट्रा. एग्जैक्टली. एंड अगर आपके जैसे इलाके में प्लेयर है, या आपके सिटी में प्लेयर है, या आपके जानने वाला लड़का है जो आपके साथ खेल रहा है, और एंड ही स्टार्ट्स टू ग्रो इन एनी स्पोर्ट, तो आप उसको फॉलो कर, एकदम से उसकी फॉलोइंग बन जाती है, क्योंकि उस इलाके के लोग ही फॉलो कर रहे हैं. एंड दैट इज वेयर द गेम इवॉल्व्स, एंड दैट इज वेयर एवरीथिंग कम्स इन. स्पॉन्सरशिप उसकी वजह से ही आती है. एंड फॉलोइंग, जब तक ये फॉलोइंग नहीं चलेगी, तब तक ये तो मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट या वो लेवल तो नहीं है, पाकिस्तान लेवल तो नहीं है कि जी चलो पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो देख लेते हैं. right. ये तो छोटा लेवल है वेयर यू नीड दिस काइंड ऑफ थिंग. और अब तो आप देखें टेप बॉल वगैरह की भी जो है वो मतलब अपने इलाकों के लेजेंड्स होते हैं, जिनके इतने बड़े बड़े नाम हैं, जिनके फेसबुक पेजेस हैं, यूट्यूब पेजेस हैं. बिल्कुल एग्जैक्टली, ये फलाना ढमकाना. तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है. मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है बाजिद भाई, क्योंकि यू प्लेड क्रिकेट एट अ टाइम वेयर यू हैड सम ऑफ द बेस्ट पाकिस्तानी बैट्समैन एंड बॉलर्स, और एज पाकिस्तानीज मतलब हमारी एक ऑब्सेशन है फास्ट बॉलिंग के साथ. हु इज द क्विकेस्ट गाय दैट यू फेस्ड एंड व्हाई इज इट मोहम्मद जाहिद? मोहम्मद जाहिद, ये तो आपने कहाँ से रिसर्च की? मोहम्मद जाहिद, when I faced him, मतलब एक तो मेरी टीम में खेलता था, when I faced him, he wasn't, मतलब he was after his back surgery. Okay, yeah. But what I had seen of him, वो उसका मतलब एवरेज उसका बाउंस जो था ना, जिस तरह जब ये आर्चर का लगता है ना कि सामने से बाउंस होता है, उसका उसी तरह बाउंस होता था. और उसकी लेंथ लोगों को समझ नहीं आती थी. सो मे बी ही वाज एज क्विक एज शोएब, बट ही लुक्ड क्विकर बिकॉज ऑफ दैट बाउंस. और जब Shoaib says he was quicker. I've heard in some interviews where Shoaib says that Mohammad Zahid was quicker, so that's why I was curious. He says that, but I don't, मतलब हो सकता है कि शायद उसकी बॉल आई थिंक पड़ती डिफरेंट थी, because it had a lot of bounce, वो ज्यादा तेज लगता था आपको. I think the शोएब को मैं बहुत खेला, शोएब के साथ वो अगेन मेरी टीम में था काफी साल, तो प्रैक्टिस वगैरह और बहुत ज्यादा खेला. तो लोग जो कहते थे कि शायद इसका एक्शन ऑकवर्ड है, वो मुझे इतना ऑकवर्ड नहीं लगता था, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैं उसको बहुत ज्यादा खेला. आई थिंक द वन बॉलर जो वाकई मुझे शायद तेज लगा था वो पाकिस्तानी नहीं था, वो था उसका एक्शन जरा डिफिकल्ट, वो था शॉन टेट, क्योंकि उसका एक्शन बड़ा मुश्किल था. उसका बॉल पीछे छुप जाता था, वो मुश्किल था. आई थिंक पाकिस्तान के उस टाइम अगेन रिलेटिव होता है, क्योंकि सम बॉलर्स लुक क्विकर. अब वो स्पीड गन तो नहीं होती, बट बिकॉज सम बॉलर्स गेट मोर बाउंस और जरा ऑकवर्ड होते हैं, तो वो दे लुक क्विकर. Zahid was very quick. I think there was another bowler, Nadeem Iqbal, who was very sharp. लेकिन इनका मतलब स्पीड गन नहीं थी ना, तो you cannot actually say कि वो quicker than. और स्पीड गन जब थी भी तो शोएब के जो है वो किलोमीटर्स नहीं माने गए थे. He had to go and do it all over again. But Basim, I'm going to change the conversation just a little bit here.
I'm going to put you on the spot because आपने FC की काफी बात की है, but recently you've had the opportunity to kind of influence Pakistan cricket a bit. You were on the panel that elected King Misbah as chief, you know, as coach, and ऐसा लग रहा था कि अगर उस panel का बस होता तो वो prime minister भी बन जाता Misbah. But obviously, we listened to you on other shows, और आपने कहा कि head coach आप लोगों ने select किया था, but chief selector आपने select नहीं किया था. Were you aware that he was chief selector when you went in to select him as head coach? No, that was the announcement was made afterwards. We were only हमें सिर्फ bowling coach और head coach के लिए बुलाया था. दूसरी जो बात है इसमें, the thing I keep on clarifying, but selecting him, मतलब वो कमिटी का इतना रोल नहीं था, because the role of actually selecting the coach was already done, as in shortlist में सारा काम था. What we'd got 4 or 5 applicants और उसमें से आपने best choose करना था, but the ones that they didn't come वो तो हमें नहीं पता. So out of the 4 or 4 जो थे उसमें से मतलब यही लग रहा था कि यही सही है. But ये कह देना कि काफी लोग मुझे ये ताने देते हैं, दोस्त भी ताने देते हैं कि यार तूने लगाया था, बट लगाया हमने ऐसे नहीं था कि okay, if they said कि this is the committee which will go and scout for a coach, फिर तो it's fine कि हमने scout किया सारी, मतलब देखिए avenues और everything, but this was more of कि ये 4 हैं, इसमें multiple choice है, इसमें से जो बेहतर लगे वो select कर लो. Am I allowed to ask if Dean Jones was on those 4 and on that list that you received? You're allowed to ask because वो तो list तो बाहर उसी वक्त हो गई थी. Yes, Dean Jones was on that list. I think 4 जो भी आए थे वो सारे तो पता चल गए थे सबको. Right. आपको लगता है ये फॉर्मूला सेलेक्टर प्लस कोच ही चल सकता है, स्पेशली इज इट अ मिसबा ओनली पोजीशन, और कि हम फ्यूचर में भी ये चाहते हैं कि यार ये फॉर्मूला हम कंटिन्यू रखें, या मिसबा इतना यूनिक पर्सनालिटी है कि मैनेज कर सकता है? नहीं, चीफ आई वाज नेवर, मतलब मैंने पहले भी कहा कि चीफ सेलेक्टर इज अ फुल टाइम जॉब. यू कांट बी अ चीफ सेलेक्टर एंड पाकिस्तान हेड कोच जो कि पाकिस्तान टीम को देख रहा है और फिर आके कह रहा है कि यार ये मतलब जो फर्स्ट क्लास हो रही है उसमें से भी प्लेयर वो पिक कर रहा है फर्स्ट क्लास पे, फिर आप किसी और लोगों से रिलाय कर रहे हो. सो व्हाई देन यू आर चीफ सेलेक्टर? प्लस मतलब जो ये कह रहा है वो ये है कि एक ही बंदा है जो सारा कुछ कर रहा है, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग. क्योंकि मेरी एक प्लेयर को देखना और आपका अगर 3-4 लोग एक प्लेयर को अप्रूव करते हैं तो चांसेस हैं कि वो अच्छा ही होगा. अगर सिर्फ मैं एक बंदा हूं जिसने ही अप्रूव करना है तो चांसेस हैं कि शायद 4-5 मेरे ठीक हों लेकिन 3-4 गलत भी हो सकते हैं. सो आई डोंट थिंक एट दिस लेवल आपको ये करना चाहिए. But Basit, we're already in overtime, but there's a few things that I really need to get through. Ek sawal hai which is a very low hanging fruit, but I'm still gonna pick it. आजकल मैंने देखा पिछले 2 साल में Imam ul Haq is going through a lot off the field, despite his batting being great, and just because his last name is ul Haq. Growing up as a brown man, family pressure is on all of us. But you grew up in a family of 3 Test cricket captains. How did you manage that as even a teenager or somebody aspiring to be a cricketer? Or unme se ek is like probably the greatest cricketer, in my opinion, the greatest cricketer of all time. I know people on the show will disagree as well. And even pre-partition, from what I understand, is that your grandfather was part of Indian Test cricket. So I mean, what's that like growing up in terms of the pressure? यार इमरान खान तो छोड़ो, his dad was the greatest opener at that time Pakistan had ever seen. He was like the Virender Sehwag of his time. Majestic Majid is what they call him, right? Would you have been anything other than a cricketer? Was that on the table? That was my own obsession. मतलब लोग अब मुझे पूछते हैं कि कैसे उतना ही मतलब जुनून था क्रिकेट का. जुनून था. अब मेरे से लोग पूछते हैं कि अब तो आपको बिल्कुल शौक ही नहीं है. मैंने कहा हाँ, बस वो 15 साल के बाद ऐसे ही होता है. लेकिन जुनून था मुझे शुरू से. फैमिली प्रेशर इसलिए नहीं था क्योंकि एक तो इतने ज्यादा क्रिकेटर्स थे कि इट वाज़न्ट अ बिग डील.
अगर आप पाकिस्तान भी खेल जाओ तो इट वाज बस ठीक है यार, खेल गया। वो ये नहीं कहते तो यार मेरा क्रिकेइंफो पेज निकाल दे एक मेरा नंबर। नहीं ऐसे नहीं था, बट आई थिंक द टॉपिक दैट नीड्स टू बी डिस्कस इज इमाम आजकल जिस तरह है हमारे सब कॉन्टिनेंट में, ये काफी है, मतलब रोहन गवास्कर से भी ये हुआ है दैट आपको कंपैरिजन जो होती है आपके स्ट्रेट अवे वो होती है विद अ ग्रेट प्लेयर, एंड इवन व्हेन यू स्टार्टेड, जब आप क्रिकेट शुरू करते हो तो इट्स हेल्पफुल, एज इन अगर आप कहीं भी जाते हो खेलने शुरू में तो लोग आपकी इंट्रोडक्शन हुई होती है, पीपल नो, दे वॉच आउट फॉर यू, कि यार ये इसका बेटा है, इसको देखो, इसको, सो यू ऑलरेडी हैव अ हेड स्टार्ट। लेकिन उसके बाद जब आप प्रोफेशनली खेलने लग जाते हो तब इफ यू स्कोर रन्स, फलाने का बेटा है, फलाने का रिश्तेदार, इफ यू डोंट स्कोर रन्स, फलाने का बेटा है, फलाने का रिश्तेदार है, एंड दैट स्टेज विद यू, एंड व्हेन यू आर नॉट स्कोरिंग रन्स, फिर जाहिर है व्हेन यू आर नॉट परफॉर्मिंग, फिर जाहिर है वो ज्यादा बात चुभती है। आई थिंक डेवलप्ड कंट्रीज में अगर ये फैक्टर हो तो वो शायद 6 महीने साल के बाद वो खत्म हो जाता है, हमें बहुत टाइम लगता है, हमें कोई 6, 8, 10 साल ज्यादा भी लग जाते हैं to actually judge a player according to his ability, according to what he can offer, rather than comparing him with his peers, मतलब his father or his, I think जब तक आप सरपास नहीं करते तब तक वो टैग नहीं जाता, आपको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव ही करना पड़ता है। कंपैरिजन का तो हमें बहुत शौक है, वैसे ही अभी बात कर रहे होंगे तो कोहली से मिला दिया अहमद शहजाद को, कोहली से मतलब इसको मिला दिया, तो ये तो बाप वाली तो कभी मेरे ख्याल जा ही नहीं सकती। मेरे ख्याल रोहन गवास्कर तो 12 साल का था जब उसका पहला कंपैरिजन हुआ था विद हिज फादर, तो और वो तो लेफ्टी था बेचारा। हाँ बस, तो वो सिचुएशन कभी खत्म नहीं होती, बट इट्स एन एडेड प्रेशर ऑब्वियसली। जब आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हो तो वो थोड़ा सा, मतलब मैं ये कह दूं कि नहीं मैं प्रेशर नहीं लिया, मैं तो बहुत प्रेशर लेता था, तो इट वाज एन एडेड प्रेशर, यस। अब इमाम के साथ ये, आई थिंक इमाम थोड़ा सा समटाइम्स ज्यादा वोकल हो जाता है, व्हिच विल आई वुड एडवाइज अगेंस्ट इट। इट्स ठीक है, बट आई बिलीव ही यूजेस इट पॉजिटिवली एज अ चिप ऑन हिज शोल्डर टाइप, उसका एक है ना एक मेंटालिटी। अब वो ये जब रन्स कर रहे हो तो चल रही है बात। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा वोकल ज्यादा हो जाता है। आपको पता है मीडिया जिस तरह हम लोग हैं या आप लोग हो, तो हम तो एक बंदे को एकदम गिरा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, जिसके हाथ में माइक है वही किंग है, सो यू हैव टू बी अ बिट वेरी उस तरह से। यस, थोड़ा सा एक दफा कर दिया, 2 दफा कर दिया, ठीक है, यू गिवन द मैसेज, बट हर उसमें, हर इंटरव्यू में नहीं, हर उसमें नहीं। सो शायद मैं गलत हूँ, बट मेरी मतलब मेरा ये व्यू पॉइंट है कि शायद वो बुरे वक्तों के लिए बैलेंस आउट कर ले तो फिर बेहतर होगा उसके लिए। I mean, टोन डाउन करना चाहिए। I like the fact कि इमाम आती है, हाँ, and Imam has runs under his nose. मैंने तो पहले भी शो पे कहा है कि I don't mind Pakistani cricketers, young cricketers having a little chip on their shoulder or being aggressive towards the media as well. क्योंकि काफी दफा जिस तरह आपने खुद कहा है कि वो Mike is king वाला जो narrative है, it becomes dangerous for young cricketers. Their destiny is kind of written in the papers and on TV and now on social media. They should be able to hit back on occasion at us or anybody else. So I think फिर बात ये वही तोड़ के वहीं आ गई बात। मीडिया, जब तक मीडिया की डेवलपमेंट नहीं होती, इंडिया में मीडिया को कोई नहीं लिफ्ट कराता, क्योंकि आई थिंक दे बियॉन्ड जो वो न्यूज चैनल्स या उस चैनल्स पे जो बोलते हैं, दे बियॉन्ड दैट, वो उसको लिफ्ट नहीं कराते। इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में जो जर्नलिज्म है वो और लेवल की है। सो द जर्नलिज्म लेवल जो है पाकिस्तान में अभी उस तरह से इट्स मतलब यंग है, बट इट हैजंट बीन डेवलप्ड। और प्लस अगेन जर्नलिज्म में वो पैसे नहीं है। आपका बेस्ट जो आई थिंक द बेस्ट क्रिकेट राइटर, वो ही कुड, मतलब वो ही लुक फॉर बेटर एवेन्यूज। अब जो सबसे अच्छा आपके लिए, आप पाकिस्तानी जो लिखता है क्रिकेट के बारे में, उस्मान समीउद्दीन, अपना दोस्त है, आई एम बायस्ड बिट, लेकिन we are too, लेकिन वो पाकिस्तान में तो नहीं काम कर रहा ना। सो द स्पेस दैट यू क्रिएट, उसी से क्वालिटी डेवलप होती है। तो द स्पेस इज नॉट फॉर एक्चुअल क्वालिटी राइटिंग। आई थिंक बाजिद भाई, जैसे हमारे पॉलिटिक्स में भी, हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में भी कुछ डायनासोर्स बैठ गए हैं ना,
जब तक वो लोग गुजरेंगे नहीं, एक्सटिंक्ट नहीं होंगे, तो अब बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो वैसे आपने इंग्लैंड की बात की, अब इंग्लैंड की बात की तो जो हमारा टूर आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट टूर है। इट कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टूर फॉर द लाइक्स ऑफ बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद अब्बास। आपको क्या नजर आ रहा है, आपको प्रिपरेशन में क्या लग रहा है, आपकी जो एक्सपर्ट आई क्या कहती है कि पाकिस्तान के क्या चांसेस है उस सीरीज में? वे प्लेयर्स से ज्यादा तो इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान की कभी इतनी बड़ी मैनेजमेंट नहीं गई इतनी स्टार स्टडेड मैनेजमेंट, इतने स्टार्स, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट तो उनके लिए। देखिए, दो एडवांटेजेस ये हैं कि इंग्लैंड इज प्लेइंग एट होम बट नॉट एक्चुअली प्लेइंग एट होम। देयर इज नो बार्मी आर्मी, देयर इज नो क्राउड, दे आर नॉट स्लीपिंग इन देयर ओन बेड्स। आपने देखा आर्चर भी घर गया क्योंकि इतनी मुसीबत पड़ गई। वो तो हमारे जैसे तो नहीं है कि यूएई में बैठ के आराम से खेल लें, तो उनके लिए ये मतलब हिस्ट्री में पहली दफा ऐसे होगा। दूसरा फैक्टर ये है कि बिकॉज देयर इज नो फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो वो उनके लिए भी सिर्फ जो टेस्ट मैचेस वो खेल रहे हैं वही उनकी प्रैक्टिस है या मैच प्रैक्टिस है, वही ग्रूव है। उनके बॉलिंग आप देखें, द अदर थिंग है कि वो बॉलिंग अपनी शफल कर रहे हैं, जो आई थिंक विच इज रॉन्ग, क्योंकि जब तक वो बॉलर्स 2-3 टेस्ट मैच में शेड्यूल ऐसा है कि उनको करना पड़ा, लेकिन जब तक वो कंसिस्टेंट बॉलिंग नहीं करेंगे, आपने मेरा तो यही ख्याल है कि एंडरसन ब्रॉड जब तक कंसिस्टेंट बॉलिंग नहीं करते तब तक वो अपने टॉप बॉलिंग या टॉप लेवल पे नहीं पहुंचते। ये तो फैक्टर्स हैं जो विच विल सूट पाकिस्तान। द अदर फैक्टर नाउ इज दैट पिछली 2 सीरीज हमने देखी हैं, अगेन द नैरेटिव, अब जो पाकिस्तान का नैरेटिव है, जो ये मुझे कह रहा है कि नैरेटिव में चेंज करूं, वो पाकिस्तान का नैरेटिव यही होता है कि बैटिंग फेल हो गई जी, ऑस्ट्रेलिया गए जी, बैटिंग फेल हो गई। ऑस्ट्रेलिया में आप एक दफा उनके 5 से 6 आउट नहीं कर सके, तो जब आप 5 से 6 आउट नहीं कर सके तो आपकी बैटिंग क्या फेल होगी, फिर आपने क्या किया? सो मुझे इंग्लैंड में ये फायदा होता है पाकिस्तान को, क्योंकि इतनी ट्रू, मतलब जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में ट्रू पिचेस होती हैं जहाँ पे बॉल बल्ले पे आ रहा होता है, वहां पे हमारे बॉलर्स बहुत स्ट्रगल करते हैं। इंग्लैंड में क्योंकि बॉल थोड़ा सा स्विंग होएगा, थोड़ा सा बॉल स्लो आता है, तो शायद थोड़ा सा हमें सूट करता है, और इंग्लैंड में इसीलिए हमारी परफॉर्मेंसेस भी बेहतर है। द इशू नाउ इज दैट आया कि हमारी बैटिंग जो, सॉरी हमारी बॉलिंग जो है, हमें मैच में कितना देर रखेगी। इफ वी कैन बी इन द गेम गोइंग टू द 3rd-4th डे, तो फिर पाकिस्तान के चांसेस बढ़ जाते हैं। इफ ऐसे नहीं है कि एक इनिंग में हमने 500 स्कोर करवा दिया या जल्दी 300 350 करवा दिया, जहां से मैच पाकिस्तान के हाथ से निकलता है। सबसे बड़ा इशू है यासिर शाह, फॉर्म में नहीं है। आपको पता है इंग्लैंड में शायद उसको सूटेबल पिचेस मिली, बट द स्पिनर हैज टू कंट्रोल द गेम, द स्पिनर बॉलिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, और विकेटें तो बात की बात है, बट ही हैज टू कंट्रोल द रन रेट। सो इफ अब्बास, यासिर शाह, अगर ये आप इस सीरीज में इन फॉर्म रहे और ये कंट्रोल कर सके, जो भी स्पिनर, यासिर शाह खेलता है या शादाब बाद में खेलता है, जो भी खेलता है, अगर ये इनफॉर्म रहे, देन पाकिस्तान है। तो आप किस चीज के फेवर में हो कि स्पेशलिस्ट खिलाएं या ये टेढ़े मेढ़े ऑलराउंडर डालें? मेरा भी यही सवाल था एग्जैक्टली। देखें, अब बेन स्टोक्स हमारे पास है नहीं, जेसन होल्डर हमारे पास है नहीं, अब जबरदस्ती का अगर आपने ऑलराउंडर खिलाना है तो फिर दैट्स अप टू यू। नहीं तो आप बताएं, अगर आप चीफ सेलेक्टर स्लैश कोच स्लैश बैटिंग कोच स्लैश मैनेजर होते हैं, इस वक्त मैं जो देख रहा हूँ कि अगर आप फहीम अशरफ आपका ऑलराउंडर है, उसको आप खिलाते हो तो ठीक है, वो आपको 10-15 ओवर दे देगा, और 20-25 मतलब बहुत अच्छा दिन हुआ तो 40 रन दे देगा। बट आई थिंक बैटिंग उसकी डेवलप नहीं हुई जिस तरह से आप सोच रहे थे। आई थिंक you have to go with your strength, which is you have to go with your six batsman. Who is your sixth batsman? Fawad Alam. There it is. Fawad Alam खेल जाएगा इंग्लैंड में। Fawad Alam खेले ना खेले, लेकिन अब उसको खिलाना ही है जो भी। What about इफ्तिखार? उसके खिलाफ इफ्तिखार भी ऑप्शन है। मुझे लगता है कि क्योंकि मिसबाह सीज हिमसेल्फ इन इफ्तिखार, तो इफ्तिखार को शायद खिला दे। तो बट आई थिंक इतनी ज्यादा फैक्टर भी हो सकता है खेलने फॉर, इतने ज्यादा रन्स के बाद, इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस के बाद, सारा कुछ होके, पहले हारिस सोहेल था, हारिस सोहेल नहीं है अब क्या रह गया? अब भी नहीं खिलाएंगे तो फिर उसको लेके ही ना जाओ, फिर उसको कहोगे नहीं जी
we don't want him. You cannot then मतलब उसको आप drag him along. अगर या तो आप प्रेशर ले रहे हो या नहीं ले रहे. अगर आप प्रेशर ले रहे हो कि जी हाँ जी सारी दुनिया कह रही है फवाद आलम को खिलाना है तो प्रेशर लेके खिला दो. अगर ये नहीं हो सकता कि हाँ जी हमने उसको स्क्वाड में भी रखा है लेकिन खिलाना भी नहीं है, लोग का मुंह भी बंद कर लेंगे लेकिन खिलाएंगे भी नहीं. यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू. तो मेरे हिसाब से छठे पे वही खेलता है और आप then you trust your four bowlers to actually win you the games. I think toss बहुत important होगा. Pakistan should not be brave in thinking कि overcast conditions हैं तो बैटिंग कर लो, क्योंकि उस overcast conditions में आपके पास सबसे बड़ी opportunity है against England because उनकी बैटिंग बहुत फ्रेजाइल है. उनकी बैटिंग और हमारा ओवरसीज जीतने का फॉर्मूला भी यही है जी. हमने बॉलिंग कर ली 180 पे बुक कर दिया, खुद 300 कर लिए. बिल्कुल ये पॉजिटिव कि जी हम ये बाद में विकेट ऐसा हो जाएगा. बाद जैसे पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड सोच रहे थे कि बाद में पिच ऐसा हो जाएगा, उनके पास तो खैर स्पिनर ही कोई नहीं. लेकिन इफ कंडीशंस आर सूटेबल और आपको सब नजर आ रहा है कि ये 2 घंटे 3 घंटे जो हैं ये बॉलिंग अच्छी होगी तो डोंट मतलब वो डिसीजन. ये लोग कहते हैं कि जी बड़ा ब्रेव डिसीजन क्या होता है? ब्रेव डिसीजन तो वो होता है जो जीतो तभी ब्रेव होता है. ये तो ब्रेव नहीं होता कि जी हाँ जी इतने घास वाले पिच पे जहाँ पे बॉल स्विंग हो रहा था हमने बैटिंग पहले की, हमने 200 स्कोर कर लिया लेकिन मैच हम हार गए. लेकिन डिसीजन ब्रेव था, ये हमें नहीं चाहिए. बाबर आजम, व्हाट डू यू हैव द एक्सपेक्टेशंस बॉब? कितने 100 मारा है बॉबी इस टूर पे? बाबर अगर तो ये जो 1 महीना है वो सर्वाइव कर गया ये 29 लड़कों के साथ, तो फिर तो वो 1-200 फिर बॉलिंग क्या चीज है? हाँ फिर बॉलिंग छोड़ देगा. अगर ये इसमें इसको टेंशन हुई तो फिर प्रॉब्लम. लेकिन बाबर बहुत डेवलप बाजिद भाई, जो आपने यू हैव सीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ टैलेंट, आप सईद अनवर और इंजमाम और इन सब के साथ खेले हो, वे आप टेक्निकल और अपने आई से आपको क्या लगता है बाबर आजम का स्टैंडर्ड और एबिलिटी और स्किल लेवल उन ग्रेड्स के हिसाब से किस मार्जिन में आता है? डू यू सी समथिंग कि यार वाकई इस लड़के में कुछ था उन लोगों के साथ मेंशन होने में एटलीस्ट? देखिए टिल लास्ट ईयर मेरा नहीं ख्याल था कि बाबर उस लेवल तक पहुंच जाएगा. आई थिंक मेरा भी व्यू चेंज हुआ है. मैं मतलब मुझे लोग कहते हैं कि शायद मैं स्टबन हूँ, लेकिन इतना स्टबन नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं प्लेयर देखता हूँ तो आई थॉट के इस लेवल तक नहीं जाएगा, लेकिन अब मेरा ख्याल है काफी हद तक बहुत ऊपर लेवल तक आ गया है. सईद अनवर, आई थिंक सईद अनवर जैसा अगेन नॉस्टैल्जिया है या जो भी आप कह लें, इतना गिफ्टेड प्लेयर कभी नहीं आया हमारे पास. उसको मैं कंपेयर नहीं कर सकता. इंजमाम वाज अ ग्रेट प्लेयर, लेकिन मुझे मोहम्मद यूसुफ की बैटिंग मतलब आउटस्टैंडिंग लगती थी. आई थिंक अभी 1-1.5 साल इसको और दें बाबर को. अगेन लॉन्ग क्लास वो सारा कुछ सब ठीक है, बट जब तक वो कंसिस्टेंटली आपको 2-3 साल नहीं करके देगा तब तक आप उसको उस लेवल तक नहीं कह सकते. And what do you think about Yunus Khan as batting coach? What do you think? ये कैसा आइडिया है? क्योंकि आप तो up close and personally जानते हैं यूनुस को, तो ये क्या? देखिए अगेन मुझे ऐसे लगता है कि मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट द पॉलिसी दैट इज मेड, पीसीबी ने पॉलिसी जो बनाई है कि यू हैव टू बी अ ग्रेट प्लेयर टू एक्चुअली कोच द पाकिस्तान क्रिकेट टीम. दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट. मिसबा हो गया, यूनुस हो गया. कोचिंग एक्सपर्टीज आपको भी पता है, मुझे भी पता है इनकी कितनी कोचिंग एक्सपीरियंस कितना है. अगेन वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद, अगेन बिग नेम्स जो हैं वही पाकिस्तान की टीम में लग रहे हैं. सो जो कोचिंग एस्पिरेशंस लोगों की काफी आपने इस फॉर्मूला से थोड़ी डिमिनिश की हैं, और जो मॉडर्न थिंकिंग है कि कोचिंग इज डिफरेंट टू प्लेइंग, वो उससे आप हट गए हैं. आई थिंक मे बी दिस इज सही है आप, लेकिन उससे आप हट गए हैं. बॉब वुल्मर कोई मेंटोर वाला फॉर्मूला चल रहा है आजकल, मुझे लग रहा है. आपने भी टॉप ऑफ द शो में मैंने रिसर्च की बात की थी, तो मैंने भी फिर बॉब वुल्मर की रिसर्च की, क्योंकि जब यूनुस लगा तो बॉब वुल्मर हर जगह हो रही थी कि बॉब वुल्मर पाकिस्तान का बेस्ट कोच है, व्हिच लॉट ऑफ पीपल से कि बॉब वुल्मर पाकिस्तान का बेस्ट कोच रहा. ही वाज वन ऑफ द टॉप कोचेस. बॉब वुल्मर ने 1967 या 68 में कोचिंग सर्टिफिकेट अपना लिया. उसके बाद कोई 15-18 साल के बाद उसने कोचिंग शुरू की.
सर्टिफिकेट के लेने के बाद 18 साल बाद उसने कोचिंग शुरू की. 10 साल वो कोचिंग करता रहा, एंड देन आफ्टर अबाउट 11 years he got to the international team. साउथ अफ्रीका में 97-98 या कब उसको अपना कोच बनाया. सो द प्रोग्रेशन देयर आप देख लो फिर. ठीक है, टॉप क्लास कोच यूनुस खान, मिसबाह हक, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रगड़े खा खा के इतने साल खेल के. इवन यूनुस खान शुरू में जब आया तो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उसको काफी टाइम लगा. उसके बाद इतने बड़े प्लेयर बने. सो इफ यू लुक एट द थियरी देयर कि उसमें आप ऐसे बन रहे हो, और कोचिंग इफ यू ठीक है अगर आप कहते हो कि कोचिंग एंड प्लेइंग आर द सेम, देन अग्रीड, ठीक है, फिर तो आपका डिसीजन ठीक है. बट इफ यू थिंक दैट कोचिंग इज अ स्पेशलाइज्ड, मतलब कोचिंग इज स्पेशलाइज्ड रोल है, तो फिर आपको भी इस तरह डेवलप करना पड़ेगा. प्लस ये मैंने अब आपको इनसाइड एक बात बता रहा हूँ. बताइए. ये मैंने बताए जब ये कमेटी पे मैं था, जब ये विस्पा पे को लगा रहे थे, तो मैंने पीसीबी के मतलब उनको भी बताया था कि ये जो आप कर रहे हो, दिस इज एक्चुअली आपकी पाकिस्तान में कोच डेवलप नहीं होगा ऐसे. उन्होंने कहा जी क्यों? मैंने कहा देखें, जो आपके इस वक्त अगर आपने पाकिस्तानी कोच लगाना है ना, तो जो आपके जो भी है डोमेस्टिक में जो भी आपको लगता है कि बेस्ट कोच है उसको लगा दो. कहते क्रिटिसिज्म बहुत होगा. मैं कहा बिल्कुल होगा क्रिटिसिज्म, लेकिन क्रिटिसिज्म प्लेयर्स नहीं मानेंगे. मैं प्लेयर्स तो मानते हैं, प्लेयर्स तो तब तक मानते हैं जब उनको पता है कि बोर्ड साथ है. जब वकार यूनिवर्स के पीछे से बोर्ड हटा तो प्लेयर्स ने रिवोल्ट कर दी. जब पता चला कि मिकी को हटाने लगे तो प्लेयर साइड पे हो गए. सो इट इज एक्चुअली द पावर इज विद द क्रिकेट बोर्ड कि आप ये कह रहे हैं कि ये बंदा है मेरा, इसको तुमने मतलब ही विल रूल द रूल्स. तो मैंने कहा वो आप देखिए पाकिस्तान में जो कोच है, ही इज कोचिंग अ फर्स्ट क्लास टीम, दैट्स इट. उसके अगर उसकी फर्स्ट क्लास टीम नंबर 1 आ जाती है तो व्हाट्स द रिवॉर्ड? नथिंग. ये अब्दुल रहमान सभी अजहर टाइप लोग जो हैं, अगर वो 5-6 साल भी आपकी चैंपियनशिप जीतते रहते हैं तो रिवॉर्ड क्या है? कुछ भी नहीं, प्रोग्रेशन कोई नहीं है. उधर दूसरा ये, अगर वो उसकी टीम 5-6 साल बॉटम पे फिनिश करती है तो फिर क्या है? कुछ भी नहीं. उसने क्या करना है? बस अपनी सीट बचानी है. He has to know the right people. PCB से बात करता रहे, बस know the right people, and there's no progression. So the coaching मतलब आप इंसेंटिव नहीं दोगे तो कोच कैसे डेवलप होगा? अब आपने उन सबको बाईपास करके जो 10-15 साल जो भी थे कोच, अच्छे थे बुरे थे, दैट्स मतलब वो मेरा हेडेक नहीं है. वो कोचिंग कर रहे हैं आपकी. यू हैव आइडेंटिफाइड देम एज मतलब दे हैव बीन कोचिंग इन योर लोअर लेवल, फर्स्ट क्लास लेवल. अब उनको सारों को सरप्राइज करके आपने पाकिस्तान के कैप्टन को कोच बना दिया है, फॉर्मर कैप्टन को. सो बेसिकली यू आर सेइंग दैट दीस कोचेस should their time is not valued, or their career is not. It's the reputation. It's and the reputation that supersedes whatever the entity is. But I just want to ask one little question related to this. बाजिद भाई, आपको लगता है कि जो मिसबाह को एक प्रैक्टिस सेशन के तौर पे मतलब इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोच बनने की भी इजाजत दी, सारी चीज की, was that the right decision? इस्लामाबाद, अच्छा, मैं जब वो कमेटी से जब अगले दिन, बल्कि शाम को, उसी शाम को जब वो हो गया सारा कुछ, तो शाम को मैं घर आया तो मेरा एक इस्लामाबाद यूनाइटेड में बड़ा अच्छा एक दोस्त है, रेहान. उसका हमारा भी बहुत अच्छा दोस्त है. हमने सब रिसर्च की है. उसने नहीं, रेहान तो हमारा भी बहुत अच्छा दोस्त है. उसने मुझे मैसेज किया कि भाईजान ये तो इसने तो इस्लामाबाद यूनाइटेड से साइन किया हुआ है. मैंने कहा क्या? कहता है कोच. मैं कहा अच्छा. मैंने कहा वो तो कॉन्फ्लिक्ट, वो तो मानी साहब ने बड़ा बोला था. कहते नहीं, कौन तो लो एंड बिहोल्ड वो अनाउंस हुआ तो साथ ही हो गया कि जी इस्लामाबाद यूनाइटेड. जी हम एक्सपीरियंस दे रहे हैं, बंदा क्या बोलेंगे. नहीं, I was quite upset with that because they gave Mickey Arthur a very difficult time at Karachi. Exactly. And I felt like भाई वैसे ही फेडरल में काफी आपको benefits मिलते हैं और अब इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी आप ये benefit दे रहे हैं. Although it didn't turn out although it didn't turn out to be a benefit exactly. But Basit, let's get to some numbers now before we end the show. What is 3 test matches? आप मुझे नंबर बताएं क्या होगा. आप भी ख्वाजा की तरह, you're dodging the number. Give me the prediction of how many test matches Pakistan are going to win. Pakistan, I have a feeling कि पाकिस्तान सीरीज नहीं जीतता. यार, so
realistic prediction है ये. So मसला लंदन ये है में कि ही हो रहा है ना, टेस्ट उधर दे देते ना, हमें एक दो कोई बात बन जाती शायद. मसला ये है कि जब वो 3 टेस्ट मैच ये खेल लेंगे वेस्ट इंडीज से, तो इनको थोड़ी सी समझ अकल आ जाएगी गोरों को, थोड़ा बेहतर हो जाएंगे. टेस्ट मैच हम एक आधा जीत ऐसे सकते हैं कि बेस्ट को ये खिलाते रहें और बेस्ट पे पाकिस्तान काफी सारा स्कोर कर ले. अगर ये आपने कह दिया ना, अब बेस्ट ने 10 विकेटें ले जानी एक टेस्ट में. अगर एंडरसन और आर्चर और एंडरसन मुझे डेंजरस लगता है पाकिस्तान के लिए बहुत. अगर वो फिट रहे और अच्छी बॉलिंग कर रहे हो तो बड़ा मुश्किल है. आई थिंक 2-1 इंग्लैंड. चले ठीक है, एक टेस्ट मैच आपने दे दिया. that's a courtesy in itself, I think. But आप लोगों की शक्ल देख के मुझे 2-1 करना पड़ा. तरस खा लिया. नहीं, मैंने तो इनको कहा है कि 2-1 पाकिस्तान हो जाएगा. It's been a while. उनके पास क्राउड भी नहीं है. It's a bit weird. हमें वैसे ही खाली स्टेडियम्स की थोड़ी आदत पड़ी हुई है. It might work in our favor. Anyways. लेकिन बाज़ जैसे कह रहे हैं ना कि हम अस्यूम करें हमारे बॉलर उनको उड़ा देंगे, ऐसा कोई सीन नहीं होना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी हमने कुछ नहीं किया और उधर भी. Exactly. और 2 लड़के आपके ऐसे खेल रहे हैं जो इंग्लैंड में पहली बार मतलब डेब्यू करने वाले हैं अपना टेस्ट मैचेस में. और 16 साल 17 साल का एक लड़का है, 19-20 साल का दूसरा है. उसने एक आध बार वर्ल्ड कप में खेला हुआ है. आई फील कि वो इनएक्सपीरियंस जो है वो काफी हद तक आता है, क्योंकि आई एम श्योर बॉल स्विंग होगी, सारी चीज होगी, बट उसको कंट्रोल करना और उसको भी मैनेज करना वो भी एक नया स्किल है. तो उनके लिए भी एक लर्निंग कर्व काफी स्टीप होगा. अच्छा, before we close off the show, we always ask some quirky questions that are a bit weird. Usually when we have international guests, we build an 11 with them, with Pakistan. आप तो obviously पाकिस्तानी है, तो आपसे हम 11 नहीं बनवाएंगे. But मेरा in the closing stages मेरा पहला सवाल ये है कि as Bazid Khan, who is your favorite ever Pakistani player? And you cannot pick from your family. Favorite ever? Yeah. It's a toss up. I'll go with 2 बता सकता हूँ या एक ही बताना? जी जितने मर्जी. 2 बता दे, हम एक निकाल लें. एक हम चूज कर लेंगे 2 में से. I'll go with Saeed Anwar and Wasim Akram. Okay, yeah, that's a very safe pick. मैं तो सोच रहा था कि आप थोड़ा outlier या कहीं से it would be a new pick, but never heard of. No one we've ever heard of, but नहीं, Saeed Anwar and Wasim Akram are pretty safe picks, and it's hard to argue that. दूसरी बात भाई, मैं भी आपसे एक मेन सवाल आपके पूछना था. जो आपने डोमेस्टिक में जो कोई एक आपने प्लेयर देखा हो अनफुलफिल्ड टैलेंट के, आपने कहा इसका अफसोस हुआ कि ये पाकिस्तान नहीं खेल पाया या उस लेवल पे नहीं जा पाया जहां इसका टैलेंट डिजर्व करता था? काफी ऐसे प्लेयर थे. खैर मैं क्योंकि बैट्समैन था, मुझे बॉलर ही अच्छे लगते थे, कि बॉलर ही तंग करते थे. आई थिंक फजल अकबर बहुत टैलेंटेड बॉलर था, बहुत अच्छा बॉलर था. एक सिचुएशन में तो उस जैसा नया बॉल पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा था. आई थिंक पता नहीं क्या वजह थी, व्हेनेवर ही प्लेड इंटरनेशनल क्रिकेट, वो कभी भी जो हमने देखा हुआ था वो उस तरह नहीं उसने बॉलिंग की. एक जो प्लेयर, खैर वो मैंने देखा उनके बिल्कुल एंड में उनको देखा, बट द वे दैट ही प्लेड, मतलब वैसा प्लेयर मैंने नहीं देखा कभी. उस लेवल का प्लेयर शायद हर किसी को नजर आता है, लेकिन उस लेवल का प्लेयर मैंने नहीं देखा. वो था जाहिद फजल. आई एक्चुअली प्लेड विद हिम जब वो बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के बाद वापस आए थे, लेकिन वो जिस किस्म की बैटिंग करता था, मतलब अमेजिंग था कि वो बंदा अगेन. उसकी कहानी ये है कि अगर आपने रावलपिंडी स्टेडियम देखा हो, तो रावलपिंडी स्टेडियम के जो पवेलियन साइड पे ग्राउंड खत्म होता है, उसके बाद थोड़ी सी जाली है, उसके बाद स्टैंड है, छोटा सा स्टैंड है, उसके बाद ऊपर करके पवेलियन है जिसका एक बहुत बड़ा शीशा है. तो ये साइड मैच खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया जब वो इनफेमस टूर था सलीम मलिक वाला. तो ये साइड मैच खेल रहा था वहां पे. इसने मगरा को उस इनिंग में 90 कुछ इसने किया, इसने 5-6 छक्के मारे थे टोटल. मगरा को उसने सामने छक्का मारा और वो ड्रेसिंग रूम की मतलब वो शीशा तोड़ दिया इसने. अब मैं बहुत छोटा था, लेकिन मैं क्योंकि इस्लामाबाद ही रहता था, हम रावलपिंडी में कोई भी मैच होना, नया स्टेडियम बना था तब शमशाबाद, तो कोई मैच होना हमने जाके देखना, तो वो हमने देखा हुआ था. तो टेस्ट मैच हुआ, जाहिद फजल साहब टीम में थे,
आए बैटिंग करने, एक इन्होंने चौका मारा, उसके बाद मार्कवॉ मीडियम पेस करा था, मार्कवॉ से आउट होके चला। बट वो आई थिंक अगर आप उसको बैटिंग करते हुए देखते तो बहुत लेवल था उसका। I think there's countless stories like that, or unfortunately, wrong place, wrong time. I mean, even I'm a cult fan of Fawad Alam. I hope he does well this summer. It's just been a long time coming. Acha, we are also working on getting your Pakistani voiced counterpart Ramiz Raja on the show. उनसे भी हम ये सवाल पूछेंगे. So you're not alone in this. You've talked about on other podcasts about how long it takes you to ready your hair for TV. I have to ask you this. आपकी beard के बारे में भी कुछ सवाल है कि how did you maintain I have to magnificent beard? I have to ask you, if you had to pick between your hair and Ramiz Raja's hair, which is apparently is everlasting. I mean, I asked him about his hair in 2015 और अभी तक एक बाल इधर से इधर नहीं हिला. Whose hair are you going to pick? And remember, we're going to ask Ramiz this as well. देखिए, with the product that I use, तो फिर तो मैं अपने I'll pick my hair all the time. लेकिन without the product, then तो फिर आपके भी मैं किसी के भी hair pick करूँगा कि you don't want to see me without the product in my hair. No, we're talking about the finished product. Finished product, I'll go with mine क्योंकि रमीज भाई बहुत he has a lot of hair. लेकिन ये beard का क्या राज है कि इसको आपने कैसे इतने impeccably maintain की हुई है? इसका क्या है? देखिए, ये अब लॉकडाउन में मुझे बड़ा मसला हुआ, मेरा जो नाई था वो तो बंद था, तो बड़ा मसले मसाइल रहे मुझे, बट ये मुझे क्रेडिट नहीं जाता। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि आप sword से इसको शेव करते हैं, ये क्या ये ट्रू? वो तो मैं उसके बगैर वो डबल उस तरह से करता है वो। I have one other question for Bazid. If there's a highlight reel of your career playing, your best shots, your best innings, whatever, who do you pick to commentate over that? Who is besides that one voice that you want? Yeah, besides us and besides Ramiz bhai, who is that one voice that you want calling that montage? Calling that montage, वो बड़ा मुश्किल। एक कोई आवाज मतलब आइकॉनिक, क्लासिकल आइकॉनिक तो अगर मैं बोलूंगा तो वो उस पे ज्यादा देर कमेंट नहीं करेंगे ना, मोन्टाज पे आवाज बहुत थोड़ी आएगी। अगर रिची बेनो का मैं कह दूं तो वो तो एक लफ्ज बोलेगा। उमर कुरैशी भी हमारे होते थे एक। हाँ, उमर कुरैशी भी होते। ऐसा होए कि जो उसको उस्मान पे ले जाए और वो मुझे जानता भी हो, तो डैनी मॉरिसन ठीक है क्योंकि वो बायस भी होगा। Yes, the Danny connection. शारिक सईद और डैनी मॉरिसन साथ बैठ के मजा आएगा एक दिन। I have to say, जो आप लोगों का juxtaposition है ना, Danny Morrison और Bazid Khan. I mean, it's like I've never seen more panic and more calm together in one studio, one place. It's incredible. It's incredible. I'd ask you like what he has as a preparation for the commentary, but I feel like it might even be illegal to tell us how he gets to the energy that this man constantly has. उसको मैं कमेंट्री में भी कहता हूँ कि look, you're almost 50 and you put us to shame with the energy that you've got. और वो हर वक्त मतलब ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ कैमरे के लिए या सिर्फ वो कॉफी में क्या मिला के पीता है ये हमें बताएं, ये हमें फॉर्मूला चाहिए। वो हर वक्त ही ऐसे है। लेकिन ये बता दूं कि अगर वो रात को उसकी नींद ना पूरी हो तो फिर वो आके कमेंट्री बॉक्स में सो जाता है, क्योंकि नींद पूरी ना हो तो फिर डैनी फारेगा। Fair enough. He's a man that deserves his sleep. He does a great job calling the T20 cricket. But it's been a pleasure and an honor to have you on the show. I mean, जब हमने एक साल पहले शुरू किया था, so we would it was a dual sword because we would look up to people like you in the commentary box, but then a lot of people would also be like, you know, we don't want to listen to TV commentary. We'd rather listen to you guys क्योंकि हमें पास थोड़ा room होता है गालियां देने का, अपने personal opinions को भी present रखने का. So I think it's been a great reflection for us, and obviously aapki insight in first class cricket is unsurmountable. I think you're the first guest that we've had that's managed to put AZ Khwaja at number 2 in terms of first class cricket knowledge, which is not easy to do. Before we leave, you have to help us because we're gonna be recording all of our guests and we're gonna get them to say, my name is X
and you are listening to changeofpacelive.com. Oh. So it's shameless marketing from our side. We're not even like हम rap ही नहीं कर रहे, मतलब हम किसी तरह के से आपको मतलब कोई PR package भी नहीं भेज रहे, बस बोलना है, आपने बोलना है. क्या बोल रहा है? My name is Khan and my name is Basit Khan. You are listening to Change of Pace, bas. My name is Basit Khan and you're listening to Change of Pace. Thank you so much. Amazing. Thank you so much, Basit. एंड कर दिया बाजित भाई यहाँ पे. इसकी क्लिप बना के पूरा एपिसोड चलेगा. Basit bhai, thank you so much for your time. And if you guys are listening to this episode, we are going to be counting down to the test series again. Ball by ball audio commentary for the test match and for the test series is going to be live on changeofpacelive.com and across our channels. Maybe we'll have Basit back on the show if he's not been napped up by one of those big studios. Until then, apna khayal rakhein, stay safe, and goodbye.